against the Avish Avengers Sakri. Match between Gumteshwar Margaon and KPM Cricketers KPM. Gumteshwar Margaon winning the toss and deciding to bowl first in this encounter. A big name in commentary in this part of the world. Wasim Khargiz has just entered. We'd also like Wasim Khargiz to take over. In short file, we'll have him in the commentary box. 12th man of both the teams, please be in the commentary box. 12th man of Gumteshwar Margaon and 12th man of KPM. Please be in the commentary box. Meanwhile, at the start, it will be Gurushan Chiklagi, aka Mendes, with the fluorescent cherry. Mukund along with Gorish as the opening partners. Here's Gurushan to Mukund. Good delivery, right on money, straight away. Dot delivery to start with. Nicely played. Looking for a big hoik, missed it completely. No proper timing, straight to the field, at back at a point. Oh, a bit of fumble. Matin Khan looking for the second chance of a run out of the bowler's end. Oh, directed would have had the batsman in trouble, but not to be. Or a better throw in the hands of the fielder. In fact, the bowler would have had him, but survives. A couple of runs to get at the mark for Mukund. That's big. Swept away and swept away long for 6. Half a dozen runs. Score moves on to 8 with that maximum. Slight change in field now. Man at deep backward square has been sent on the fence. Just being moved to square leg now. Naresh Soldekar has just been moved towards the umpire. Oh, excellent delivery. Can't do much about it. Yorkerland delivery. And the batsman had no answers. Dot delivery nevertheless. Superb bit of bowling apart from getting a maximum has been on money. Again trying for that big hoik. A sweep, missed it completely. 8 runs coming from it after completion of 1. Oh, misfield again. Overthrows. And these opportunities being created by the batting team. Single 20 over after completion of 1. It's 9. 9 without loss after 1. KPM Cricketers. KPM.
Change in bowling. It will be Sanket from the far end. 9 without loss after 1. KPM Cricket is put into bet by the Kumteshwar Margaon. Nicely played along the carpet down to the extra cover region. A bit of fumble from that fielder and will be 2 runs. Gurushan Chiklagi down there. 2 runs added. Score moves to 11. There's a canteen for you. If you are hungry, if you are needing anything to eat, anything to drink, you can go there in that canteen and have something. Big hoik and gone straight to Dinesh. Takes a low catch, kept his eyes on the ball, and the first casualty of KPM cricketers. It's Mukund who is heading back to the pavilion. It's 11 for 1. Two new batsmen. The opener, Goresh hasn't faced a single delivery. He's at the other end. And now just being joined by Shubham. 11 for the loss of 1. Nicely played up and over. That offside. And that's 4. No chance in stopping that one. The fielder running in from the extra cover boundary. Can't do much about it. Gets off the mark with a 4. Up and over this time. Straight to the fielder. But a double down there. Will just be 1. Score moves on to 16 with that single. We'll see some wizardry later on when Bharat Dabholkar comes on to bowl. Swing and missed. Swing missed. Dot delivery to end the over after completion of 2. It's 16 for 1. 16 for 1 after 2 overs. KPM cricketers. Let's see which starts off down the ground. Will just be a single.
Oh, taking the other way. That's what you get from this man. He just doesn't give you any chance when you are batting in the middle. No matter this is a cement deck, but still, everywhere he's been very impressive with the ball. Taken by the skipper. Misguided in that flight and the guile of Varad. Top edged and gone. Gauresh has to depart. He's gone for a duck. It's 17 for 1. Vaibhav, the new man, in trying to cut that one. And that's a wide. Extras. Officials in this particular game, Mosim Sheikh and Aliston De Mello. As the third umpire, we've got the experienced Sadgiri Naik. Full toss and dispatched for 6 over mid-wicket fence for a maximum. Score moves to 24. Swing, missed, whipped off the bail, and that's gone. Very quick work by the skipper behind the stumps. Looks like he's nicked it. He's suggesting that he's nicked it and also flashing the bails off. And Vaibhav has to depart. It's 24 for 2. 24 for 3, in fact. KPM cricketers Cape. There's a canteen there. NSA canteen. And Anil. NSA canteen. New man in Sushant for the KPM cricketers Cape. Again, not reading from which direction the ball is turning of Varad. A long run up. Usually don't see it with him. Short delivery again, taking it away. Excellent delivery. Dot delivery to end the over after completion of 3. It's 24 for 3. 24 for 3 after 3 overs. KPM cricketers. Change in bowling, it will be Naresh Asoldekar in the bowling attack. Smashed it down the ground. Down to the fielder, fielded as well, picks it up, throws it back, just a single. Score moves to 25. Oh, just wide the keeper. Tried his best but couldn't quite hold on to it.
False start. In case if you have joined just now, then this is Amda Chashak Season 2 here in Usgaon. Match between Ganpati, in fact, Kumteshwar Margaon and KPM Cricketers KPM. Kumteshwar Margaon winning the toss, deciding to bowl first, putting the KPM into bat. Currently 26 for 3. KPM. Good delivery, excellent delivery. Very experienced Naresh Soldekar, bowling those full deliveries outside the off stump. And the batsman has no clue whatsoever. Just that need to be predetermined that he is going to bowl full and going to bowl just away from the right hander. Nicely played. Along the carpet, has he threaded the needle? No. Straight to the fielder. Chance of run out, and that will be gone. Suicidal. Looking for the second one, and has to jog back in the pavilion. Another one gone. 4th wicket down. It's 27 for 4. KPM Cricketers, KPM. At the non-striking end, 27 for the loss of 4. 4th over in progress in this batting of KPM Cricketers, KPM. Swing missed. Dot delivery to end the over after completion of 4. It's 27. 27 for 4 after 4 overs. KPM Cricketers, KPM. Change in bowling, it's Chirpu. And that's gone. Gets the wicket on the very first delivery that he bowls in this last over. Akshay Jogre gets his man. So half side done packing of the KPM Cricketers. It's 27 for 5. Okay, new man in Rohan. Last 5 deliveries remaining. And here's 27 that could be mustered so far by the KPM Cricketers, KPM. Swing missed. And will get a single in form of leg byes. Just a single, score moves to 28. Low scoring encounter this unless and until that Sushant provides some magic in the last few deliveries. Shimmy down the wicket, trying for it, missing it completely. Dot delivery. That's up in the air, and the keeper will take it. Another time, the keeper takes the catch, and the 6th wicket down. Sushant has to depart. He's gone without scoring. It's 28 for 6.
for toss. Heart of 11, Walpoi and Sai Ganesh Royals Vasco. It's Walpoi who will take on Vasco. Requesting both the captains, please come for toss. Please submit your lineups and please come for toss. Captain of Sai Ganesh Royals Vasco, please, as early as possible. Already got the captain of Heart of 11, Walpoi, heading towards the commentary box. New man in, Ajay. Will just be one. Score moves on to 29. Again, to enter the bat. Chance of a run out at the bowler's end. Chirpu will flush it off. So another one gone. Wicket falls on the last delivery. So 29 runs have been posted after being put into bat. The KPM cricketers for the loss of 7 wickets in their 50 runs will be required to win for Gumteshwar Margao when they come out to bat. At the start of the innings, meanwhile, United Force India organizing 4th All Goa Panchayat and Municipality level heavy ball day-night tennis cricket tournament 2025 to be starting from 7th, 8th, 9th, 10th and 11th of May. Compulsory 6 overs, 40 teams only. First prize will be of 1,38,000 rupees. Second prize of 50,000, 38. Semi-finalists to get 12,038. This will be at the Bypass Tisk Road. It will be live on YouTube. Entry fee of 7,000. If you need to register yourself, you can contact 9860-476644 and 9637-211-814. You can contact Chiku for that, for this tournament. Meanwhile, at the start of the innings for that run chase, it will be Jai Bhosle sir in the commentary box. हेलो अगली टीम अगला मुकाबला जो कि आरव 11 वापई और साई गणेश रॉयल्स वास्को के बीच में होने वाला है। दोनों टीमों के कप्तान जल्दी आइए। कृपया मैं फिर एक बार सूचना आप सभी टीमों को कर रहा हूं कि दूसरी इनिंग यहाँ पर जब तक शुरू हो उससे पहले आपको यहाँ पर टॉस के लिए आना पड़ेगा। अगर एक कप्तान यहाँ पर उपस्थित है और दूसरा कप्तान उपस्थित नहीं है तो उस कप्तान के लिए वो टॉस दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें यहाँ पर। धन्यवाद श्याम। नमस्कार, फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के रजनी का ये दूसरा मुकाबला गुमटेश्वर मरगांव वर्सेस केपीएम क्रिकेटर्स के बीच में। पहला मुकाबला बड़े रनों का रहा लेकिन उसका पीछा करते हुए अविश एवेंजर साक्रीम टीम बड़े रन नहीं बना पाए। अब ये दूसरा मुकाबला लो स्कोरिंग का मुकाबला है। सिर्फ 30 रन बनाने हैं जीतने के लिए गुमटेश्वर मरगांव टीम को। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी है गुमटेश्वर मरगांव के गेंदबाजों ने, खास करके गुरुशंत उर्फ मेंडिस ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी। एक छक्का उस ओवर में लगा जरूर लेकिन मात्र खर्च हुए उस पावरप्ले ओवर में 9 रन। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, बल्लेबाजी करने का फैसला किया था केपीएम क्रिकेटर्स टीम ने, लेकिन जो कि अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी उतनी अच्छी हुई नहीं केपीएम क्रिकेटर्स टीम की। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो चुके।
मतीन खान और मतीन और दिनेश ये जोड़ी। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड के साथ शुरुआत इस इनिंग की होती हुई। रन आपके पास कम है और इस तरह से आप खर्च नहीं कर सकते। लो स्कोरिंग के मुकाबले भी रोमांच पैदा कर सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि शुरुआत वाइड के साथ। आरव 11 वन द टॉस। ओ इस बार बल्ले को लगी, वहां पर स्लिप पे खिलाड़ी तैनात। बहुत बढ़िया कैच, सराहना होगी। यहाँ पर रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरह से कैच को अंजाम दे दिया है। मैच बन सकता है अगर आप विकेट चटका दे रहे इस मैदान पर। पहला विकेट निकला मतीन खान, एक प्राइस विकेट निकला है गुमटेश्वर मरगांव के खेमे से। खाता खोलने से पहले वापस जाना पड़ रहा है मतीन खान को। 30 रन का पीछा करना है, रन थोड़े कम है लेकिन वहां पर लड़ना पड़ेगा केपीएम क्रिकेटर्स टीम को, क्योंकि हमेशा देखा जाता है पावर प्ले के ओवर में, पहले ओवर में एक आध दो विकेट अगर आप चटका लेते हैं तो सामने वाली टीम दबाव में आ जाते हैं, डिफेंसिव मूड में आ जाते हैं। मैच बन सकता है। शुरुआत तो विकेट के साथ यहाँ पर इस ओवर के हो चुके हैं, वाइड के साथ शुरुआत, लेकिन विकेट के साथ भी शुरुआत पहली गेंद पर लीगल डिलीवरी पर। नए बल्लेबाज नाम तो सुना ही होगा, राहुल मैदान के अंदर, वन डाउन बैटर मैदान पर। 30 रन बनाने हैं और गेंदबाजी की बात की जाए तो शायद सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि सुबह के सत्र में इस मैदान पर रनों की बरसात हो रही है और अब मात्र थोड़ा सा अकाल पड़ चुका है रनों का। दूसरा मुकाबला इस रजनी का, तीसरा मुकाबला कुछ ही पलों में आरव 11 वालपई वर्सेस रॉयल साई गणेश रॉयल्स के बीच में होगा। और देखिए आते पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट निकाला है अपने पिटार से राहुल ने। शायद कह रहे हैं नाम तो सुना ही होगा इस छक्के के साथ। 6 रन के साथ अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या पहुंची 7 रन स्कोरबोर्ड पर। टॉस जीता है आरव 11 वालपई टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी करेगी रॉयल श्री रॉयल गणेश रॉयल वास्को की टीम, साई गणेश रॉयल वास्को की टीम। और डेड बॉल थोड़े से निकले थे यहाँ पर। और इस बार खेला फिर एक बार, कैच का मौका, बहुत बढ़िया कैच वहां पर और एक विकेट निकला, एक शॉट निकला लेकिन कवर के बीट को शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी था उसके सर के ऊपर खेलने की कोशिश करी थी बल्लेबाज ने, लेकिन राहुल को वापस जाना पड़ रहा है। राहुल का काम तमाम। दूसरा विकेट, बैक टू द पेविलियन। स्कोरबोर्ड पर लगे 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गोवा राज्य का और एक लीजेंड खिलाड़ी, ढेर सारा अनुभव, बहुत बड़े प्रतियोगिता में खेल रहे हैं। इनके उम्र के कुछ खिलाड़ी आज रिटायर हो चुके हैं लेकिन ये अभी भी खेल रहे हैं मैदान पर और सराहना करनी पड़ेगी गेंदबाजी जिस तरह से नरेश ने गेंदबाजी करी अपनी टीम के लिए। बहुत बढ़िया 3 रन खर्च करे उस ओवर में और जिस मैदान पर गेंदबाजों की पिटाई होती है उस मैदान पर इस तरह की गेंदबाजी करना लाजवाब, लाजमी गेंदबाजी करी है नरेश। अब बल्लेबाजी के लिए अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी तैनात, शॉट लेग पर रनआउट का मौका। दोनों खिलाड़ी एक छोर पर आ चुके थे, यहां पर मौका था और एक विकेट चटकाने का, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट मैदान के यहाँ पर, धुआं थोड़ा सा उठ चुका है मैदान पर, लेकिन गर्मा गर्मी का मौसम, मैच बनेगा जरूर। एक आध विकेट और निकल आता है ना तो मैच जरूर बनेगा मैदान पर, लेकिन अब थोड़े से कंधे ऊपर उठ चुके हैं केपीएम क्रिकेटर्स टीम के, क्योंकि 2 विकेट और खास करके वो प्राइज विकेट मतीन खान का, और अब रन बनाने के लिए लड़ना पड़ेगा मैदान पर। एक छक्का आते ही केएल ने राहुल ने यहाँ पर बनाया था, थोड़ा सा दबाव कम कर दिया था, लेकिन ये ओवर बहुत बढ़िया। ओ इस बार खड़े हो गई है गेंद और एक विकेट शायद निकल सकता था। ओ यहाँ पर और एक विकेट, वापिस लगभग जाना पड़ा और एक विकेट, लेकिन ड्रॉप हो गया कैच वहां पर। ये देखने वाली बात, देख क्या यहाँ पर रनआउट के लिए शायद अपील, कैच ड्रॉप हो गया, क्या गुप्तगू यहाँ पर कर रहे हैं अंपायर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सीधी रोशनी जो है ये कमेंट्री बॉक्स में सीधे आंखों के ऊपर
पड़ रही है, जिसके चलते हुए जब हवा में गेंद जाते हैं, जब गिर जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दिया और एक विकेट निकला है। मैच में रोमांचकता पैदा हो चुके हैं। अब यहाँ पर 3 विकेट इस पहले ओवर में निकले हैं। कौन कहता है कम रनों का मुकाबला यहाँ पर रोमांचक होता नहीं है। देखिए इस मुकाबले को देखिए। ओके जी हाँ, कैच ड्रॉप हो चुका था लेकिन रन आउट हो गए वहां पर। बहुत दूर निकले थे, शायद ध्यान नहीं था, शायद उनको लगा था गेंद हाथ में फंस चुके हैं, इसलिए वो पॉपिंग क्रीज से बाहर थे और तब तक गिल्लियां बिक रही थी। नए बल्लेबाज गौरीश मैदान के अंदर बाएं हाथ के गौरीश है गेंदबाज जो कि आखिरी गेंद डालेंगे इस ओवर के। नए बल्लेबाज अक्षय। और इस बार उठाकर खेला, फड़ी फंसी है गेंद, कैच की संभावना, कैच ड्रॉप हो गया है। मैच और एक रन आउट का मौका, शायद देखने वाली बात होगी। अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर के लिए रेफर कर दिया। क्या मैच में नाट्यमय घटना है मैदान पर, दिल की धड़कन। क्या मैच है देखिए मैदान पर। 30 रन बनाने लेकिन जल्दबाजी, नॉट आउट, और ये नॉट आउट है। 2 रन पूरे हो जाएंगे। ओवर समाप्त हो गए, पहले ओवर का खेल समाप्त। दोनों टीमों की तुलना की जाए, दोनों टीमों ने बनाए थे पहले ओवर में 9 रन। गेंद हवा में जब जाती है तो शायद दिखाई नहीं देती कुछ देर के लिए, और जब तक प्रयास अच्छा था फील्डर का, जब हाथ में आई थी, गोदी में आई थी गेंद, और मौके पर थोड़ा सा झटका लगा और गेंद हाथ से निकली। रनआउट से भी बाल बचे। और गेंदबाजी में अब दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज बॉलर मुकुंद गेंदबाजी की मोर्चे पर। अब थोड़े से केपीएम क्रिकेटर्स के खेमे में भी जान आ चुकी है, थोड़ा सा उत्साह भरा वातावरण नजर आ रहा है। मैच हम जीत सकते हैं, शायद विकेट निकले, ये सोच होगी शायद कप्तान की मैदान पर। और इस बार देखिए ये नटराजन स्ट्रोक, फाइन लेग स्क्वायर लेग पर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। एक शानदार स्ट्रोक निकला इस बल्लेबाज के बल्ले से, चौवे के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 13 रन। दिनेश है बल्लेबाज, इनके बल्ले से ये गेंद थोड़े से लेग स्टंप के ऊपर थी, लेकिन जगह बनाई, रूम बनाया खुद के लिए। और एक का जो कि एक नटराजन स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ, लेफ्ट स्वीप के जैसा स्ट्रोक था, गेंद फाइन लेग पर निकलती 4 रन के लिए। 13 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद निकलती, वाइड का इशारा था अंपायर का, अतिरिक्त और एक सिंगल खाते में लिखा जाएगा। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोरबोर्ड पर। अभी भी 16 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। मैच थोड़ा सा रंगीन मिजाज पे, अगर 10-15 रन और होते तो और मैच में मजा आ जाता। पटकी हुई गेंद इस बार खेल दिया। यहां पर गेंद लगभग ये गेंद डेड बॉल होगी, क्योंकि जब इस तार को गेंद लगती है, केबल को गेंद लगती है, तो ये डेड बॉल दी जाएगी। शॉट अच्छा था, गेंद निकल रही थी, लगभग निकली ही थी सीमा रेखा के बाहर। हमारे स्कोरर ने यहां पर लिखा ही था, लगभग गांठ मारनी थी, लेकिन तब डेड बॉल दिया, डेड बॉल हो गया। अच्छी गेंद, शॉर्ट पे डिलीवरी, यहाँ पर फिर एक बार भागे, इस बार हाथ में नहीं फंसी गेंद। 1 रन, लेग बाइट का इशारा, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 15 रन स्कोरबोर्ड पर। 3 विकेट निकले जल्दी पहले ही ओवर में।
जहाँ आखिरी गेंद पर वो नाट्यमय घटना है, कैच छूटा, उसके बाद रनआउट का मौका वो भी छूटा। और यहाँ पर ये डेड बॉल थोड़ा सा गुमटेश्वर मरगांव के कम नसीबी, जो कि अगर बात की जाए तो वो लगभग 6 रन की शॉट था वो बल्लेबाज का। ओ आगे निकले थे खेलने के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। यहाँ पर थोड़ा सा विकेट कीपर के हाथ से गलती हो गई है और 22 के रूप में 1 रन और निकलेगा। अगर बार बार हर एक प्रतियोगिता हम कहते हैं बल्लेबाज के बल्ले से गेंद जब लग जाती है तो रन कैसा, लेकिन ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, वर्ल्ड कप। और वहां पर देखिए बल्ले को लगने के बाद वो बाउंड्री चली गई थी, वो मुकाबला जीता था, फाइनल जीता था। ओह चलिए टाटा गुड बाय खत्म, और एक विकेट, चौथा विकेट, बैक टू द पेविलियन। दिनेश वापस निकलते हुए, मैच में क्या रोमांचक था आज, ये करवट बदलने वाला हो सकता है। वो जो छक्का अड़ चुका है, क्या वो मैच में टर्निंग पॉइंट हो सकता है, वो डेड बॉल पर टर्निंग पॉइंट क्या हो सकती है इस मुकाबले में, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल टोटल की बात करते हैं, टोटल लगे स्कोरबोर्ड पर 16 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 14 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। दिनेश आउट होकर वापस निकले नए बल्लेबाज मैदान पर, एंजिलो। किसी ने मेरे कान में आकर कह दिया था जब 30 रन बने थे 3 ओवर में ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये भाई क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, उल्टा पैर होने में देर ही नहीं लगती। अनिश्चितताओं से भरा ये क्रिकेट, 4 विकेट डाउन हो चुके हैं। यहां पर भी राहुल बैठे हैं, उनको भी जल्दबाजी है, कितने विकेट है, गिर चुके हैं 4 विकेट जो कि गिर चुके हैं। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। ओ अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। यहाँ पर ओवर समाप्त हो गया, दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 16 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, क्या मुकाबला बन चुका है। 18 गेंदों का खेल बाकी, 14 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। मैच में रोमांचकता बरकरार रहेगी। दूसरे अगर केपीएम क्रिकेटर्स की बात की जाए तो उनके लिए विकेट अहमियत रखती है, तो दूसरी तरफ गुमटेश्वर मरगांव की बात की जाए, एक बड़ा शॉट, मैच आसान और हो जाएगा गुमटेश्वर मरगांव टीम के लिए। दोनों टीमों के लिए बराबर का मौका, विकेट चटकाया तो क्रिकेटर केपीएम क्रिकेटर्स की टीम वापसी करेगी इस मुकाबले में। अगर एक बड़ा शॉट निकल आया इन आने वाली इस ओवर में तो मैच आसान हो जाएगा गुमटेश्वर मरगांव टीम को। देखना है किसके हित में जाएगा ये ओवर। 18 गेंदों का खेल बाकी, 14 रन की है आवश्यकता। आने वाली मुकाबले की और रुख करते हैं। आरव 11 वालपई वर्सेस साई गणेश रॉयल्स वास्को के बीच में मुकाबला होगा। आरव 11 वालपई टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, तो फिर एक बार बल्लेबाजी देखने का मौका मिलेगा। धीरज आए हैं गेंदबाजी के लिए, देखना है धीरज के पास कितना धीरज है अपनी टीम के लिए, किस तरह से धीरज गेंदबाजी करेंगे। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है अक्षय। अक्षय ने बहुत बार अपनी टीम के लिए कारनामे कर दिए हैं, वो छक्का कौन भूल सकता है, आखिरी गेंद पर आवश्यकता थी और वो छक्का सेमीफाइनल में लगाया था अक्षय ने, और आज कुछ वैसे ही पारी की आवश्यकता है, संकट मोचक बनना पड़ेगा उनको टीम के लिए। ओ घुटना टेक, तमाशा देख, हवाई फायर, स्लीप और गली के ऊपर से गेंद बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, गेंद सीमा पार, 4 रन के लिए। ये सीधे साधे अक्षय नहीं, ये खतरनाक अक्षय है। 4 रन के साथ दूरी कम होती हुई हार और जीत के बीच की टोटल पहुंचा 20 रन। पहले ही घुटना टेक दिया था वहां पर पिच पर, पहले ही तैयार थे, पता था शायद उनको गेंद कहां से आ रही है, कैसे आने वाली है। 10 रन की आवश्यकता। फिर एक बार निकलते हुए
और फिर एक बार छोटी गेंद, फिर एक बार गेंद जा रही है, इस बार स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज, टोटल अब पहुंचा है 24। शायद अक्षय कह रहा है मैं हूं ना मैदान पर अपने टीम के लिए। संकट मोचक भरी पारी है, 2 बाउंड्रीज लगातार, बैक टू बैक बाउंड्रीज। पलड़ा भारी इस बार, अब सिर्फ 6 रन की आवश्यकता मुकाबले में जीतने के लिए। कुछ रोमांचकता पैदा हो चुकी थी पहले 2 ओवर में। पहले ओवर में तो बहुत सारा रोमांच देखने को मिला। अच्छी गेंद, फिर एक बार खेला यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। डीप से आए खिलाड़ी गेंद को जब तक फील्ड करते, 1 रन और खाते में। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हूं 25 रन, 5 रन दूर, 5 कदम दूर अपने इस जीत के साथ। एंजिलो मैदान पर जा चुके हैं, उनको सामना करेंगे इस गेंद का, आने वाली इस तीसरी गेंद, चौथी गेंद का। और इस बार मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला, वहां पर खिलाड़ी आते गेंद को एक हाथ से रोकते, मिलेगा मात्र सिंगल। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 26। वो 2 बाउंड्रीज काम कर गए अक्षय के बल्ले से, आसान कर गए इस जीत को। और इस बार अल्टी पल्टी वाला शॉट खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर चढ़ी नहीं, देखने वाली बात, अंपायर का इशारा, लेग बाइट्स का आता हुआ और एक सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 27 रन। 3 रन चाहिए सिर्फ इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस बार खेला है गेंद, 1 बाउंस, गेंद सीमा रेखा के बाहर, शॉट के साथ मैच हो चुका है समाप्त। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन कुछ रोमांचकता भी देखने को मिली। गुमटेश्वर मरगांव टीम अपना पहला मुकाबला जीतते हुए, अभिनंदन गुमटेश्वर मरगांव टीम का, और आभार केपीएम क्रिकेटर्स के केपीएम टीम का, इतनी दूर से आपने इस प्रतियोगिता में आने के लिए हिस्सा लिया। शुक्रिया अदा करते हैं और रुक करते हैं मैन ऑफ द मैच के लिए। और तब तक आपको बता दे, आने वाला मुकाबला साई गणेश रॉयल्स वास्को वर्सेस आरव 11 वालपई। टॉस जीता आरव 11 वालपई टीम ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और अभी समाप्त